कल भी गंगा दशहरा है दिन में। कल का था ना, तो बारिश आ गई तो आज हो गया उसका। हाँ, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, एज यू विश स्वामी जी। यस आई यस। ट्राइड माय बेस्ट। श्रीमद् भगवद गीता 14 चैप्टर गुणत्रय विभाग योग 26th we were discussing माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। Arjun had asked 3 questions. The last question was, how does a sadhak, a seeker, reaches that state of the absolute which is beyond the 3 qualities. Third question of fit to be becomes qualified. He merges. That is the only one and one also. Oneness. What is one? One pointed. Then that mind becomes no mind, and that dissolves in the absolute. Absolute means absolute steadiness. Sort of as Brahman, which is all indicative terms, which can indicate only the absolute, which cannot be indicated by other such words. That's why we use some words, Vachyartha and Lakshartha. Lakshartha, जो indicative or pointing out that target which is to be seen, to be known. But the word is just a medium. In that way, the one pointed devotion is only way, and thereby one attains that state which is known as Brahman or absolute truth or Paramatma, call it as you like. So one who attains that state, he goes beyond everything. And this is not only Krishna has stated here. Same Bhagavan Krishna has stated this thing in a different language, in different context, different ways. same Gita. And in other scriptures also, wherever you go, this will be the only way. No other way is there. He then goes beyond the 3 qualities. Qualities are imbalanced state of the absolute which has been manifested as Mool Prakriti or Maya or the nature we call the supreme power. That means it is manyness, imbalanced state. When it becomes balanced, that balanced state cannot be identified as something for long. That identificating term will disappear. Neither term will be there, nor the identity as anything will be there.
only awareness will remain. And that is called going beyond the qualities. Qualities means nature. And going beyond nature, nature means imbalanced state. So that is the only way. And we know it, we have heard it in different ways from different saints and sages, from different scriptures. He then goes beyond these three qualities and becomes fit to become Brahman for attaining liberation or release from birth and death. एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता है ही नहीं। मन है दुनिया, मन है प्रकृति, मन है त्रिगुणात्मिका। इसको हम त्रिकोणाकार शक्ति का नाम दिए हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रायंगुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी, which is known as the body or the individual being or the world. कुछ भी करो, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है एक दूसरे के साथ मिलजुल करके, उसी का नाम तो त्रिगुण है और कुछ नहीं। तो इसी को पार पाने के लिए एक चाहिए, वन विदाउट ए सेकेंड। ही अच्छा ये कैसे होगा? वही तो मन को सब जगह पर अलग अलग मेथड है सब। गुणातीत होना, मुक्ति पाना अथवा ज्ञान की स्थिति में जाना अथवा योगी अपना लक्ष्य को हासिल करना, भक्त अपना भगवान के साथ मिलना, एक ही बात है। कहो बोलो, जो बोलो ना बोलो। He attains to the knowledge of the self through the grace and mercy of the Lord. हाँ, यहाँ हमारा विचार करने के योग्य है। Mercy of the Lord. He attains the state when the Lord is gracious on the seeker, the mumukshu, the aspirant who tries to go beyond everything. For him, there is a saying, चार कृपा चाहिए, चार, 4 kinds of grace is required. क्या क्या? बोलो बोलो। भगवत गीता, भगवान का कृपा, हाँ, गुरु कृपा, हाँ, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, आत्म कृपा और शास्त्र का कृपा। ये कैसे कैसे 4 कृपा होते हैं? All these 4 kinds of graces, or we can say, what we can say in other words, call it something, कृपा, दया और वर प्रसाद या क्या, जो कुछ कहो, तो उसको प्राप्त करने के लिए 4 अलग अलग रास्ता तो बताया, लेकिन 4 अलग अलग कृपा चाहिए। लेकिन ये चारों को चारों एक ही का नाम है। जैसे जो हमारे 3 डायमेंशन पिक्चर हम देखते हैं, one picture looks different from different angles. That is a bright example for the world. This one world, one object looks different from different angles. और उसी के ऊपर हम उसका वो जो अरुणाचल का उदाहरण हमेशा देते हैं, अरुणाचल का चारों तरफ परिक्रमा करो
तो कहीं तो शिव जी का रूप, तो कहीं शिव पार्वती का, कहीं त्रिशूल, तो कहीं नंदी, तो कहीं गणेश, कुछ रूप दिखता है और बिल्कुल क्लियर। हाँ जी, इफ यू गो अराउंड इट you will have different pictures, clear pictures. Take a photograph also. So similarly, one object looks different from different angles. Similarly, this all kinds of, four kinds of kripa is only one kripa. उसको हम पहला हम कहते हैं आत्म कृपा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ फेथ, आत्मविश्वास। इसके बिना कुछ नहीं होगा। मैं कर पाऊंगा, कर सकूंगा, कर लूंगा, करूंगा। आई विल डू, दिस विल पावर। विदाउट दिस नथिंग कैन बी डन। यू आर द सेंटर, अराउंड यू द होल वर्ल्ड इज रिवॉल्विंग। that I should be strong and one-pointed. If it becomes many, its power is distributed in many ways, so it becomes powerless by limited I. तो जब वो एक पॉइंटेड हो जाता, वन पॉइंटेड हो जाता है, उसी का नाम आत्मकृपा और उसी का नाम सफलता। मन एकाग्र हुआ तो ऐसा व्यक्ति के लिए कोई दुनिया में है ही नहीं जो काम वो उसके लिए असंभव हो। राम बोल दिया हनुमान तो मसकी कृत राक्षसम गोस्पति कृतवारिसम। मसकी कृत राक्षसम, राक्षसों को मच्छर के वहां पे मसल डाला राम नाम से, और वो समुद्र को गौ के खुरे के अंदर पानी के बराबर लांग गया। क्या नहीं संभव है। वो राम नाम मतलब मन का पक्का दृढ़ विश्वास, उसी को रसायु बोलते हैं श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा और सबूरी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज ए मस्ट, दैट इज कॉल्ड सेल्फ अनुग्रह, आत्मकृपा। उसी का नाम है मन का एकाग्रता। मन एकाग्र हो गया तो ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं जो कोई व्यक्ति उसको नहीं कर पाएगा। गुरुदेव यूज्ड टू से, you can hold the Himalaya in your hand and put it in Pacific Ocean. भगवान कृष्ण गिरिधर बने, हनुमान जी गिरिधर बने, तुम भी बन जाओगे। एक ही मन चाहिए, मन चाहिए। ये हुआ आत्मकृपा और शास्त्र कृपा। हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसको सुनते हुए नहीं सुनते हैं, देखते हुए नहीं देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? It goes overhead just like passing clouds in the sky. It has no effect on the brain. हम सुनते हैं, एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकल जाता है। गुरुदेव का वो पारे बुलाए ना, 3 खोपड़ी, एक खोपड़ी में यहाँ से सुनता है, दूसरे खोपड़ी से दूसरे कान से निकल जाता है, और दूसरा सुनता है मुँह से निकल जाता है, कुछ नहीं जाता है अंदर। और तीसरा जो सुनता है वह ना दूसरे कान से गया ना मुँह से कभी बोला, अंदर अंदर हृदय तक पहुँच गया। उसी का कहते हैं ग्रंथ कृपा। मन जो सुने हम
उसको आत्मसात किए और उसी से भी आत्म कृपा बनता है। एक दूसरे के साथ संबंधित है। पहले कहा वन सीन इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, एक ही मन एकाग्रता को हम अलग अलग ढंग से देखते हैं। वही एकाग्र चित्त से सुनना और एकाग्र मन से मनन करना, क्या सुना था मैं, और उसी के ऊपर निष्कर्ष को निकालना, टू गेट ए conclusion out of it, that is called nididhyasana, and to be fixed on that, that is the final acceptance. It is not the consequence, not the conclusion, that is acceptance. This is the truth. That can be possible only when you hear properly and discuss it mentally within yourself properly, without thinking anything else. That also is ekagrata, one-pointed mind. And finally, when it accepts, the mind accepts it, then it cannot, even with interest, it cannot get out of it. जैसे तुमको बहुत नींद लग रही और बिस्तरा में पड़ गए तो कोई नहीं उठा सकता है, वैसे ही एक बार हमारे एक गुरु भाई जी थे, आत्मानंद करके, आत्मज्ञान करके, 3 दिन तक स्वामी जी के साथ काम किया, दिन रात सोया नहीं एक पल। उसका आदत था कुंभकर्ण जैसे 3 दिन तक नहीं सोया। उसके बाद वह सोया 3 दिन तक सोया, ना खाना ना पीना ना कुछ नहीं। उसको एक, जैसे हम बिस्तरा को उठा करके एक जगह से दूसरे जगह रख देते ना, वो बिस्तरा साफ करने के लिए उसको उठा करके एक तख्त से दूसरे तख्त में डाल देते थे। जैसे तकिया एक बिस्तरा से दूसरे तकिया दूसरे बिस्तरा में डालते हैं, ऐसे उसको उठा कर रख देते थे, उसको कोई होश नहीं रहता था। ऐसा होना चाहिए मन, जड़ जैसे। तभी जाकर स्वीकार कर लिया तो फिर मन और कहीं जा नहीं सकता है, नहीं जा सकता है। तो उसी का नाम ग्रंथ कृपा। जो सुने उसको समझे, उसको स्वीकार करे और उसको अपना ले। हम भोजन करते हैं, भोजन करके मनुष्य तो एक बार भोजन कर लेता। गाय ये बैल वगैरह ये कैसे खाते हैं, एक बार जैसे तैसे खा लेंगे। उसके बाद समय पालने से उसको पाने से वो चुगाली करते हैं। उसको उनके 2 पेट होता है, एक पेट में उसको आधा अधूरा खा करके डाल दिया, और जब समय मिलता है सोए हुए रहते हैं तब उस पेट से उसको निकाल के मुंह में उसको अच्छी तरह चबा करके उसको दूसरे पेट में डालते हैं, हजम होगा तब। ऐसे ही उसी का नाम है हमारे मनन है। सुन लिया, मन में रख लिया, समय जिस टाइम में मिल गया उसी के ऊपर उसको दोबारा चबाना, गायें जैसे चबाते हैं, चुगाली करना। उसी को कहते हैं मनन। To chew it a second time thoroughly well, and then it will be assembled with your body. It becomes one with your body. Then only that is yours, or else it is not yours. सुना, उसको मनन किया, समझा, उसको स्वीकार किया, स्वीकार करके उसको अपना बनाया। मैं जानता हूँ ये चश्मा है, जानने से नहीं चलेगा काम। जान करके इसको उठाया और आंख में लगाया, आंख में लगा करके अगर पढ़ूंगा नहीं तो कुछ नहीं, आंख लगा कर बैठे रहो। पढ़ना है तब तो इसका इस्तेमाल किया गया,
और जब पढ़ा तो फिर ये चश्मा अपना बना। इसी प्रकार शास्त्र का कृपा अवश्य चाहिए, उसके बिना नहीं हो सकता है। उसी का नाम भी आत्मकृपा। दूसरे दृष्टि से देखोगे मन का एकाग्रता है ना, एक सेंटर, उसके चारों तरफ घूमते रहो। तीसरा क्या हुआ? गुरु कृपा। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम। वही शास्त्र वाक्य हो, गुरु वाक्य हो। मंत्र के वहाँ भी मंत्र को जैसे हम बार बार रिपीट करते हैं, वैसे ही शास्त्र को जैसे हम मनन करते हैं, गुरु वाक्य को ऐसे ही मनन करना और उसको अक्षरशः पालन करना। उसके मतलब उसके साथ अपना जोड़ करके वो अपना बन जाना। गुरु कहा बैठो तो बैठो, उठो तो उठो। मिलिट्री ऑर्डर। Guru is a commander in chief, and whatever he says, it has to be accepted without any if or but. No if, no but. Yes sir, hell Hitler, Hitler's order. इसके ऊपर एक सुंदर कहानी सुनो। एक कोई गुरुजी थे, ये गोरखनाथ जी थे। गोरखनाथ जी एक चेला को, उनके बहुत चेले थे सब, उनको साथ लेकर के कहीं घूमते रहते हैं और सब चेले गुरु जी के बड़े प्रिय थे। लेकिन एक चेला था जिसको गुरु जी बहुत दिल से प्यार करते थे। गुरुओं का ऐसा होता है, पक्षपातता होता है। गुरु निरपेक्ष होते हैं, लेकिन सच बोले भगवान भी निरपेक्ष रहते हैं। भगवान तो निरा, कोई अहेतु को कृपा करने वाले कोई उनका अपना पराया कोई नहीं। फिर भी एक लेकिन लग जाता है, भगवान पक्षपात करते हैं किसको? जो उसका अपना भगत होगा। भगवान अपने भक्त के लिए, भगवान कृष्ण भक्त का बात को रक्षा करने के लिए चक्र हाथ में लिए। मैं हार जाऊं लेकिन मेरा भक्त जीत जाए। ये भगवान का पक्षपात था, महान था, तभी तो भगवान है। सूर्य को ही ढक दिया था। और क्या। तो गुरु जी एक किसी चेला को बहुत ज्यादा प्यार करते थे दिल से। क्यों? वो गुरु वाक्य को सदा पालन किया है जी जान से। तो दूसरे चेलाओं के मन में हमेशा ईर्ष्या होता था। गुरुजी बोलते हैं, गुरुजी निरपेक्ष होता है, लेकिन गुरुजी का प्यार तो उसी के ऊपर ज़्यादा है। तो ये गोरखनाथ जी को समझ में आ गया कि बच्चे ऐसा सोच रहे हैं, इनको एक दिन दिखाऊंगा करके गए। जा रहे हैं किसी जंगल में, जाते जाते कहीं थक गए थे दोपहर को समझे, तो बच्चों थोड़ा पेड़ के नीचे आराम कर लेते हैं। हाँ गुरुजी बहुत थके हैं। पेड़ के नीचे बैठे बैठे दिखाते हैं, अपने पास एक पहाड़ खड़ा है, सीधा राइट एंगल परपेंडिकुलर खड़ा है। ये हमारे नैनीताल जाता होगा तो एक पहाड़ है ना, सीधा ऐसा खड़ा है। तो एक तरफ से तो सीधा है, बाकी तरफ से तो ढालदार है। तो गुरुजी बोलते हैं, बच्चों देखो तो ये पहाड़ कितना सुंदर दिखता है। हाँ गुरुजी बहुत सुंदर। और ये ऐसा सीधा खड़ा हुआ ना गुरुजी, कभी कभी ऐसा चट्टान तो होते हैं, अरे इसके किनारे सब ढालदार है। अच्छा अच्छा, उस तरफ ढालदार है ना, उस तरफ ढालदार है ना। हाँ अच्छा, इसके ऊपर कोई जा सकता है क्या? इसके पीछे और क्या होगा? हाँ उसके पीछे कुछ होगा।
कौन जाएगा, थोड़ा देखना चाहिए था इसके पीछे क्या है। सब कहे गुरु जी मैं जाऊंगा, गुरु जी मैं जा सकता हूँ, मैं भी जा सकता हूँ। एक एक करके, अच्छा तू जाएगा, हाँ गुरु जी जा सकता हूँ, जा तो देखें। जाना और ऊपर जब पहुंच जाएगा ना, आवाज लगाना, और क्या है मैं हमको बोलना, हम देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि उसके पीछे क्या है। गया वो, हाँ गुरु जी आता हूँ अभी। वो ढाल से चढ़ गया, ऊपर जाकर पहुंच गया, गुरु जी पहुंच गया। अच्छा बेटा पीछे क्या है सब, वो ढोंगबाजी बहानाबाजी, गुरु जी बहुत उससे बड़ा और सब पहाड़ है। हाँ अच्छा अच्छा, अच्छा बेटा और देरी मत करना, उधर से खुद जानी चाहिए। क्या गुरु जी ये मैं नहीं कर सकता हूँ, गुरु जी मेरे को ये जंपिंग मेरे को आता नहीं, मैं जंप नहीं कर सकता हूँ, आदत नहीं किया ना, मेरे को पैर टूट जाएगा, इतना ऊपर से मैं कूद नहीं सकता हूँ। अच्छा तो फिर आजा, आजा जैसे गया था ऐसे आजा, आ गया। तो दूसरे को बच्चे को बोला, बच्चा तू जाकर देख तो, ये सही ढंग से नहीं देखा, कुछ बहाना बना करे, तू जा तो। गया हुआ, गुरुजी पहुंच गया, हाँ अच्छा बेटा कूद जा। ना ना गुरुजी मैं ये नहीं कर सकता, ये ऐसा थोड़ी होता है, इतना ऊपर से कौन कूदेगा, मर जाऊंगा मैं। अच्छा बेटा आजा, एक एक करके सब गए, सब मना कर दिए। आखिर जब सब आ गए नीचे, तो ये जो प्यारा लड़का को बोले तू बेटा जा सकता है ना, हाँ जा सकता हूँ, जा सकता हूँ। तो गया ऊपर, बेटा और जल्दी जाना है, कूद जा नीचे, कूद जा चलेंगे जल्दी। मारा छलांग नीचे, सबको देखने के लिए मिला वो गुलाब के पंखुड़ियों के ढेर, उसके ऊपर 2 हाथ उसमें गिर रहा है। वो जो गुरु कहता है कूद जाओ, तुम्हें ऐसा बेवकूफ को गुरु बना रखा है गुरु बोलते हो, इतना उसको समझ में नहीं आता है कि उधर से गिर जाएगा तो मर जाएगा बच्चा मेरा, इतना उसको समझ में नहीं, तुम गुरु बना रखे हो हैं। यही तो तुम्हारा गुरु बनाने का तरीका, यही तुम्हारे गुरु के ऊपर विश्वास श्रद्धा। जिसको तुमने गुरु माना वो बोल रहा है कूद जाओ, उसको मालूम नहीं, अज्ञानी है, जीव है, वो नहीं जानता है कि लड़का कोई इतना ऊपर से गिरेगा तो मर जाएगा, ये नहीं जानता है, बोल देता है कूद जा। यही तो तुम्हारे बुद्धि की पहचान, यही तुम्हारे विश्वास की पहचान, ये गुरु का पहचान नहीं, तुम्हारी पहचान है। तुम कैसे बेवकूफ हो वो सबके सामने दिखाई दिया। जो गुरु बोलता है कूद जाओ, उसके अंदर ये सामर्थ्य नहीं उसको बचाने के लिए, इतना विश्वास नहीं है तुम्हारे। इसी को कहते हैं गुरु कृपा। ऐसा जो मान सकता है गुरु, जो बोला वो कर दिया आंख बंद करके, क्यों कैसे ये सवाल नहीं उठता है, नहीं उठता है। हाँ गुरु जी कूदूंगा, तभी गुरु कृपा मिलता है। गुरु कृपा ही मुख्य मूलम गुरु कृपा। तो ये जब बिल्कुल विश्वास गुरु के ऊपर हुआ, वो विश्वास और कुछ नहीं, 1 पॉइंटेड माइंड। दूसरा वो जो है ही नहीं गुरु के वचन के बिना। तो इसी प्रकार गुरु का कृपा, आत्मा कृपा, शास्त्र कृपा मिल गया, और फिर परमात्मा की कृपा तो और रहा कहा। इसी का नाम तो है, तुम्हारे हाथ मुट्ठी में परमात्मा है, हाथ मुट्ठी में।
भगवान जो है भक्तों के बस में ऐसे ही रहते हैं। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु को, केवट के नाव चढ़े। भगवान भक्तों का भी नौकर बन जाते हैं। यह अगर तुम्हारे अभी अटूट विश्वास है भगवान का कृपा, तो भगवान तुम्हारे हाथ मुट्ठी में है, कृपा तो कहाँ रहा। जैसे नचाओगे। गोपियां एक छाछ पिलाने के लिए वो कालू को कैसा नचाते थे, हैं? जिसी को ब्रह्मा जी पैर को धो नहीं पाया, उसको केवट धो लिया, है? यही दृढ़ विश्वास भगवान तुम्हारे बस में हो जाते हैं, इसी को कहते हैं भगवत कृपा। और इसको चारों तरफ से अगर हम देखेंगे, सिर्फ मन का एकाग्रता और मन का अमनपना, मन नहीं रहेगा उधर, तभी जा करके मुक्ति कहो, त्रिगुणातीत स्थिति कहो, और आत्म साक्षात्कार कहो, मुक्ति कहो, निर्वाण कहो, जो कहना कहो, मन मर्जी तुम्हारी। तो इसी प्रकार we saw all these 4 kinds of grace. He attains to the knowledge of the self through the grace and mercy of the Lord. To these ever harmonized devotees worshipping me in love, I give the yoga of discrimination by which they come unto me. Yoga of discrimination. Bhakti अव्यभिचारिणी भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जब ये मन एकाग्र होता है, कैसे उसका पहला स्टेज रहता है विवेक का उदय होना। जैसे सूर्य उदय होने के पहले अरुण उदय होता है, पहले आसमान में सुनहरे किरण सब चमकते हैं, अरुण, उसी को अरुणोदय कहते हैं। बिफोर सनराइज द dawn we see, where we see the golden rays of the sun. Similarly, before you get that oneness, discrimination has to act. Discrimination is, today we are having IPL final, that is discrimination. League was going on, everybody played with everyone, and two fought against each other, one was winner. That winner has to play with another winner, and out of two winners, third winner is selected. In that way, quarter final, then semi-final, then final is played with two teams only. Two teams. The winner will be the cup holder, winner of the cup. तो उसी को हम कहते हैं, ये जो फाइनल गेम है उसी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। परमानेंट एंड इम्परमानेंट, शाश्वत अशाश्वत, जो the last conclusion between two, decision between two,
This is permanent, this is impermanent, this is momentary. The world is, because of its changing phenomena, the world is ever changing, so ever getting destroyed. So it is momentary. And one which never changes, that is the truth, that is imperishable truth, permanent, eternal truth, that is the cup winner. Vivek says this is permanent, this is transitory, so select what you want. He is the referee. He will decide who is the winner. So before this dawn of discrimination is a must. उसी को भगवान कहते हैं, I give him the yoga of discrimination, विवेक योगा, विवेक शक्ति उसको मैं प्रदान करता हूँ. I gave the yoga of discrimination by which they come unto me. I am the imperishable absolute truth. Out of pure compassion for them, dwelling within their self, I destroy the ignorance, burn darkness by the shining lamp of wisdom. I am the self-effulgent effulgence. So I am the effulgence of effulgence. I am the absolute luminosity. Tasya bhasa sarvam idam vibhati. By his effulgence, all these beings, all these objects are seen or known or illumined. So he gives this light of wisdom, and thereby the devotee sees the absolute and becomes one with it. Just as the moths, they come to the fire and without anything they enter into it and gets dissolved in the fire. Similarly, the devotees, they go to the absolute meme and lose their identity in it. And that is because of God's grace. And by God's grace, we get the discriminating power. बजी घंटी. अच्छा, अव्यभिचारिणी bhakti, the devotee constantly meditates on the Lord. He has exclusive devotion to the Lord alone, one without a second, thinking of one only. He has no other thought save that of his God, Lord. His mind is filled with the thoughts of the Lord. His thoughts flow towards the Lord like the continuous flow of oil from one vessel to the other. Taila dharavat. The flow of oil from one part to the other. There is sajatya vritti prabaha. One kind of thoughts go on and on. Second type will not enter into it. When the oil flows from one part to the other, there no wind, nothing can enter in.
Similarly, when one thought flows continuously without any break, then only it meets the absolute. That is unbroken flow of the one thought of God. There is total abandonment of thoughts of sensual objects. There is no sense, no contact of the sense with the sense objects. Nothing is there except God. There is total abandonment of thoughts of sensual objects and constant thinking of God. The sure means for crossing beyond the three qualities of nature. एक ही बात को अलग अलग ढंग से जैसे भी कहो, एकाग्रता का अभ्यास, शास्त्र आलोचना करना या योग अभ्यास करो, भक्ति, ये जो अव्यभिचारिणी भक्ति मतलब एक जो जिसको तुम मान लिया, कोई भी रूप, कोई भी नाम, कुछ भी ले लो। हम तो इतना तक कहते हैं कि उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो जब मुर्दा मुर्दा करके कोई अगर भगवान को प्राप्त कर सकता है, सर्वज्ञ बन सकता है, महाज्ञानी बन सकता है, तो हम क्या नहीं कह सकते हैं। कुछ भी कहो पर एक होना चाहिए, दो नहीं। वो एक ही पहुंचा देगा एक के पास। हाँ, एक के पास पहुंचा देगा। यस सर। सो इन दैट वे आज बज नहीं रहा तुम्हारे? वो पहले ही बज गया। 8:30 बजे बज गया, 9 बजे का दिया, 8:30 बजे बजा। अरे धोखा दे दिया मेरे को। नहीं वो आप शुरू किया ना, लेट अस कंसीडर इट, बज गया वो पहले। So now the time is over. So tomorrow we shall see further Brahmano hi pratistham amritasya abhyasya cha शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। ये सुख किसको मिलेगा कल करेंगे। ये जो ब्रह्म भूय जो सुख मिलेगा गुणातीत को, वो किस किस को मिलेगा, कहाँ कहाँ मिलेगा देखेंगे, कल ढूंढेंगे। कल गंगा सागर पहुँचेंगे, सागर में मिलेंगे। कल गंगा दशहरा है तो कल शाम को कर लेंगे, इसको हासिल कर लेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, गीता माता की जय। हरि ओम।